In 1998, when I came to India, as most of you know, जैसा आप जानते हैं, I had a vision about India. Tanya had a vision about India. We had some set of expectations, लेकिन जो हम सोच के आए थे, what we had thought about this business, how much it's going to impact people's lives, कितना बड़ा achievement होगा, कितना बड़ा potential है. Today, I feel कि that vision was too less. Today, I have to basically multiply my vision 10 times. I have to think 10x. When I came to India in 1998, you all know the story. I was a good student. I got a scholarship. I graduated from IIT Delhi. और उसके बाद I went to the US on a scholarship to do my master's and higher studies. और वहीं पर I met another top student from Europe, from Ukraine, Tanya, and we both got married. We both worked together in Hewlett Packard, a Fortune 50 company. उसके बाद हम दोनों को लगा कि एक बड़ी कंपनी में काम करते करते our scope of work gets very limited. And since we were adventurous, we were risk takers, तो हमको लगा why not we start in a small company. So we both worked for tech startups. क्योंकि हमको लगा कि हम बहुत फास्ट ग्रो करना चाहते हैं. And being part of a small startup team, there is an opportunity to be part of that growth curve, steep growth curve, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली और टेक्निकली सीखना पड़ता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वो हुआ हमारे साथ. और मज़े की बात यह है कि जिस टेक स्टार्टअप में तानिया काम करती थी वहाँ से हमें एमवे मिला, और जिस टेक स्टार्टअप में मैं काम करता था उसका एक बहुत बड़ा आईपीओ हुआ यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, विच इज स्टिल टॉक्ड अबाउट टिल टुडे. तो पुराने टेक्नोक्रेट्स हैं, दे स्टिल नो अबाउट व्हाट वी डिड एंड दे स्टिल salute us for that. So that was something remarkable. फ्रेश फ्रॉम दैट सक्सेस हम लोग कुछ और अनोखा करना चाहते थे. उस वक्त एमवे बिजनेस हमारी लाइफ में आया, एंड मेनी टाइम्स पीपल आस्क अस फॉर द लॉजिकल रीजन व्हाई यू took a bold decision to do Amway. Look, guys, there are a lot of things in life you do emotionally. You never fell in love with your wife for logical reasons, but you fell in love with her emotionally also. और इमोशनली वी मेक अ डिसीजन एंड देन वी जस्टिफाई इट विद फैक्ट्स. तो मैं भले ही आपको एमवे के कितने बेनिफिट्स गिनाऊं, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट बोथ तानिया एंड आई वी फेल इन लव विद दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी. और हमको लगा कि रियली इससे ड्रीम्स पूरे होते हैं, रियली इससे लोगों की लाइफ में generations in a family get positively affected. And we came to India, and that decision was opposed by everybody, including our family. They all thought तुम पागल हो. लेकिन मुझे पता है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर कुछ बहुत बड़ा करना है, इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, यू हैव टू बी क्रेजी पैशनेट अबाउट समथिंग. टू थिंग्स यू रिक्वायर. वन इज द पैशन, एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स डिसिप्लिन टू फॉलो अप ऑन दैट पैशन. पहले तो पागलपन चाहिए, और उसके बाद आपको अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा उस पागलपन पे काम करने के लिए. And these are two opposing things. Discipline and पागलपन दोनों जेल नहीं होता ना. लेकिन yes, Amway business is a business of opposite and balance. When we talk about balance between width and depth, लगता है दोनों opposing चीजें हैं. Sponsoring and retailing opposing चीजें हैं. But it's all about balance in this business. So we came to India, we started the business, and we met all of you. और हम सब लोग जो है एक फैमिली का हिस्सा बन गए. And today we are so thankful because हम आपके बिना अपनी जिंदगी जो है imagine नहीं कर सकते. We can't imagine our lives without you. Now, Amway business, let's talk about the reality today that Amway business में everybody is standing on the shoulder of giants. We stood on the shoulder of giants like Pat and Betty Kaufman. We should have stood on the shoulder of giants like Mariana Johnson, Lou Regan, Darlene Regan, and so many other people who came into our lives जो हमारे upliners बने. And we had seen them build this business very, very big. और ये business ने उनको बहुत जबरदस्त freedom दिया. But I want to let you know one thing. When my upline mentor, Executive Diamond Pat Kaufman, came into the Amway business का turnover globally was only about $100 million. आज Pat Kaufman का turnover जो है, उनका business turnover जो है, personal business turnover है, is many, many times that size. So he was not limited by a स्मॉल थिंकिंग कि एमवे का तो सिर्फ $100 मिलियन का टर्नओवर है. प्लस मुझे अच्छे से याद है कि जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था और हमारे बिजनेस पे एंट्री लेने से कुछ साल पहले तक
There was no Ruby bonus. The 2% extra Ruby bonus which you get today, it was not there. It came into the plan later on. The leadership commission hota hai, it was only 2%. When you break a platinum leg, you only get 2% of their turnover, award volume. फिर वो टर्न 2% से 4% हुआ और आज 4% से 6% है. डेप्थ बोनस जिसे हम कहते हैं, टीम बिल्डिंग बोनस, विच इज 1% टुडे, इट वाज लेस देन दैट पहले. ये सब बोनसेस बड़े हमारे आंखों के सामने, लेकिन मेरे को ये आपको बताना है कि हमारे अपलाइंस हैव ह्यूज बिजनेस विच दे बिल्ड ऑन फ्यूअर बोनसेस, फ्यूअर पे आउट्स देन अस. और आज हमारे पास कोर प्लस है विच इज इवन बिगर, मोर मनी कमिंग आउट. So you have to be grateful and have an attitude of gratitude for those who are in the business for a long time, because you're already seeing improvements, and ये improvements आपके लिए नहीं हुई हैं. This has been the evolution of MA right from the beginning, that they keep on improving the plan, they keep on making adjustments, they keep on putting more money into the hands of distributors, because ये partnership है हमारे उनके बीच में, और ये partnership continue रहेगी. So Amway business, Amway opportunity is bigger and better today. Now I want to talk a little bit about कि इस वक्त हमारे लिए अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी क्यों है. Why are we so excited about it today? दोस्तों, जब मैं इंडिया आया था ना 1998 में, when I came to India in 1998, just before that we had made friends with Sudha Kapoor, our close friend. We had met her on a laundromat, जहाँ पर वो कपड़े धोने आई थी और किसी को मिली, उन्होंने उनको हमसे मिलवाया. To cut a long story short, बिफोर इंडिया मार्केट ओपनड अप, एमवे इंडिया में आया, उससे पहले मैं सुधा को इस बिजनेस के बारे में समझाया करता था यूएस में. और हमारे पास जो गाड़ियां होती थी ना, उसमें उस वक्त हमारे पास गार्मिन कंपनी का एक जीपीएस सिस्टम हुआ करता था, बहुत ही रूडिमेंट्री बेसिक जीपीएस सिस्टम, थ्रू विच वी यूज्ड टू go and find destinations. And I used to tell Sudha next to me that, you know, one day in India you will also have a GPS system. And she used to tell me, अरे इंडिया में तो सड़कों के नाम ही नहीं होते, तो वहाँ जीपीएस क्या काम करेगा. और आज आप देखो कि एक ऑटो रिक्शा वाला भी होता है ना, वो एक जीपीएस के सहारे आपके घर तक पहुंचता है. इवन ऑटो रिक्शा वालों के पास भी जीपीएस होता है फोन पे. उस वक्त 1997 की बात है, मेरे पास हमेशा, सुधा को पता है कि मेरे हाथ में हमेशा एक मोबाइल फोन रहता था, CDMA मोटरोला का. उस वक्त मैं मोबाइल पे जहां भी रहता था, मोबाइल से फोन करता रहता था. मैंने उस वक्त सुधा को कहा था कि सुधा, एक दिन ये मोबाइल हैंडसेट जैसी टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी और हर आदमी के पास अपना एक मोबाइल होगा. तो वो मेरी बातों को सुन के हंसती थी. She used to laugh and she used to think, what is he talking about? ये अमेरिका में है ना, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इंडिया के उनको रियलिटी नहीं मालूम. He doesn't know about India. And today, tell me, who doesn't have a mobile phone? With this smartphone instrument, we are running our entire life. बिल्स पे करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एंटरटेनमेंट लेते हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग. सो एवरीथिंग इज हैपनिंग. मैं उनको बताया करता था कि लोग ना मोबाइल फोन के थ्रू और टेलीफोन्स पे ना, लोग इंटरनेट पे ना, दे ऑर्डर क्रिसमस गिफ्ट्स इन अमेरिका, दे ऑर्डर थ्रू कैटलॉग आइटम, सो मेनी थिंग. घर में इवन पिज्जा ऑर्डर करना होता है तो फोन पे आ जाता है. तो सुधा टोल्ड मी कि ओ ऐसा इंडिया में पता नहीं होगा सुमित, बिकॉज इंडिया में तो पीपल प्रेफर शॉपिंग only by going to the store because they love window shopping. And now you tell me guys, who does not shop on the internet today? आप में से हर एक आदमी के घर में दूध भी आया होगा फोन पे. You must have ordered a pizza on the internet, through a website. You must have ordered groceries on website. Everything you are doing now. But वो सब पिक्चर देख के, when I came to India in 1998, I had that image of whatever I was seeing in the US and whatever I could see happening in the US market. तो मैंने अनुमान लगाया, I could just do some forward forecasting कि 20 years hence India में भी ये सब चीजें होंगी, and then that will create a huge opportunity. But my dear friend, at that time in 1998, I had no idea about Google. I had no idea about Facebook. I had no idea about artificial intelligence. And these things, ये चीजें जो हैं आज हमारी लाइफ को revolutionize कर रही हैं. Today I feel that why हमारी लाइफ, आपको पता है, before for the last 10-15 years टेक्नोलॉजी में मेजर एडवांसमेंट्स हर 3.5 साल में आया करते थे. Every 3.5 years
टेक्नोलॉजी यूज्ड टू टेक अ लीप फ्रॉग टू द नेक्स्ट लेवल, लेकिन अब every 75 days technology is making a leapfrog. 3.5 साल से every 75 days things are happening so fast and that will come down to weeks. ऐसी कोई एस्पेक्ट, ऐसा कोई फैसेट ऑफ लाइफ नहीं है जहां पर हमारी लाइफ टच नहीं हुई है. फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एट द टाइम व्हेन आई केम टू इंडिया, यूएस में एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी होती थी जिसका नाम था ब्लॉकबस्टर वीडियोस. तो ब्लॉकबस्टर वाज बेसिकली डी फैक्टो स्टैंडर्ड कि अगर घर में किसी को मूवी नाइट करनी है तो हर एक के पास घर में डीवीडी प्लेयर्स होते थे, होम एंटरटेनमेंट सिस्टम होता था, और हर एक के पास एक छोटा सा ना लाइब्रेरी कार्ड बना होता था, like a small library card. They used to have a Blockbuster card. So in every city in US, North America, as well as Europe, you could go into any nearest Blockbuster, show your Blockbuster card, dikhao, and they had a collection of thousands and thousands of movie titles. Pick one, come home, see them, और उसके बाद nearest drop box में उसको drop कर दो, डाल दो अपनी convenience से, and your account will be debited by the movie rentals. And Blockbuster was huge. इतनी बड़ी कंपनी थी एंटरटेनमेंट कंपनी. हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट ब्लॉकबस्टर कंपनी के इर्द गिर्द होता था. एंड यू नो व्हाट, दे वर द स्मॉल कंपनी. शायद आपने नाम सुना होगा नेटफ्लिक्स, सबने सुना होगा नेटफ्लिक्स का नाम. नेटफ्लिक्स कंपनी जब शुरू हुई थी तो ब्लॉकबस्टर जो थी वो उसको खरीदने वाली थी, लेकिन फिर उनको लगा कि ये नेटफ्लिक्स तो बहुत छोटी सी पिद्दी सी कंपनी है, व्हाई टू बाय इट. दे डिड नॉट बाय नेटफ्लिक्स. एंड यू नो व्हाट हैपेंड, वीसीआर, वीसीडी, ऑल दिस जमाना गया, ब्लॉकबस्टर इज वाइप्ड आउट क्लीन, नो मोर. एंड नेटफ्लिक्स बिकेम सो बिग, especially after March 2020, that today Netflix का evaluation in dollar terms is bigger than Disney. Can you imagine? Disney से बड़ी Netflix. Just imagine, huge. ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. माय गुडनेस, ज्यादा दूर क्यों जाएं? लुक एट टेस्ला. इलेक्ट्रिक कार्स की जब बात होती थी तो लोग इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सोचते थे कि अच्छा वो जो गोल्फ कार्ट्स होती हैं, जो गोल्फ कोर्सेज पे होती है इलेक्ट्रिक कार्स, वो नहीं. दोस्तों, टेस्ला कंपनी जो है इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द स्टॉक प्राइस टुडे इज मोर देन टोयोटा, मोर देन मर्सिडीज बेंज, मोर देन BMW, मोर देन वोक्सवैगन, मोर देन जनरल मोटर्स, मोर देन फोर्ड. एवरीथिंग कंबाइंड, सारी कंपनियों का वैल्यूएशन जोड़ने के बाद उससे बड़ी कंपनी सिर्फ एक अकेली टेस्ला है. और 5 साल पहले टेस्ला के बारे में किसी को मालूम ही नहीं था. ये सब क्यों हुआ? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत फास्ट हो रही हैं. और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे फ्रेंड हैं एप्पल कंपनी में काम करते हैं. 2021 में, अगले साल, एप्पल अपनी कार जो है वो मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा, प्रोटोटाइप, और 2024 में एप्पल इज गोइंग टू बी कमिंग आउट विद द एप्पल कार. ट्रस्ट मी, व्हेन वी केम टू इंडिया, everybody, you ask them about their dreams. Oh, my dream car is Mercedes Benz. Pet answer. Oh, my dream watch is Rolex. You know what, जो हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, all these young boys and girls, their dream watch is no longer Rolex. It's basically Apple Watch. The most high-end Apple Watch is basically what they want to own. और आने वाले टाइम पे they will even say कि my dream car is Tesla or basically the Apple car, whatever is going to come. All these companies, all these things are going to basically slowly fade because वो innovate नहीं कर पाई अपने आप को. Kodak movement इतना popular हुआ करता था. Kodak is no longer there because digital photography took over. Apple is basically doing great. Apple sells more watches than Rolex combined, Omega combined, everything. तो कहने का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट कि एंटरटेनमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, एवरीथिंग इज चेंजिंग. ऑलरेडी इन अमेरिका एक कंपनी है जो अपनी सारी ट्रक्स, जिनका बहुत बड़ा ट्रकिंग बिजनेस है, उसमें उनकी सारी की सारी ट्रक्स जो है वो स्वचालित हैं. आज की तारीख में हम लोग ये नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट कि स्वचालित गाड़ियां आएंगी या नहीं आएंगी. आज की तारीख में हम ये बोलेंगे कब आने वाली हैं.
We are not going to talk about whether self-driven cars are going to come or not. We're only going to talk about when will they arrive. And trust me, there'll be a time when you'll be traveling in India and everybody in the road will be driving in self-driven cars. And there'll be less accidents and more stability. And you'll reach your destination faster. No, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? Because technology is changing every facet of our life. Machine learning, artificial intelligence, everything is part of the same technological innovation. और इस ये technological innovation जो है, even come into the area of medicine. Hello, we are in the area of health and wellness. No? Recently, I was reading a report जिसमें Bank of America and Merrill Lynch के जो topmost analysts हैं, they're talking about the fact कि right now a huge amount of investment, dollar investment, पैसा उन कंपनीज में जा रहा है जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग, आपके डीएनए से कनेक्टेड एक टेक्नोलॉजी है, प्लस बायोटेक कंपनीज जो हैं जहां बहुत जबरदस्त काम हो रहा है. एंड दे आर सेइंग कि आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी हम लोग ह्यूमन लाइफ स्पैन, जो हेल्दी ह्यूमन लाइफ स्पैन है, उसको हम लोग 100 से ऊपर साल आराम से कर लेंगे. I can tell you in the next 5 to 6 years, 70s will be the new 40s. And very soon what will happen is this, कि आप में से मैक्सिमम लोग जो होंगे ना, जिनकी हेल्थ अच्छी है, जिन्होंने अपने आप को ठीक ठाक रखा है विद न्यूट्रलाइट, दे हैव नॉट अब्यूज्ड देयर बॉडी, यू नो, वो लोग जो है इजीली आराम से 30-40 इयर्स एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में निकाल लेंगे एंड उनको मजा आएगा. दे विल बी हैविंग अ ग्रेट टाइम. सो हम लोग जो कहते थे ना कि ड्रीम लाइक यू विल लिव फॉरएवर, वो सब सच होने वाला है. और आई विल चैलेंज ऑल ऑफ यू गाइज, द लीडर्स ओवर हियर, दैट इफ यू न्यू, अगर आपको पता है विद सर्टेनिटी दैट यू आर गोइंग टू बी हैविंग 30 to 40 मोर इयर्स ऑफ गुड हेल्थ, तो आप अपनी ड्रीम लिस्ट पे और क्या क्या लिखोगे इस वक्त? लिखो तो लिखने का मन है आपको. राइट डाउन लॉट्स ऑफ थिंग्स. पिक अ न्यू इंस्ट्रूमेंट. डिसाइड, मेरे को एक नया इंस्ट्रूमेंट सीखना है. पुट डाउन अ फैक्ट कि मेरे को एक मैराथन दौड़नी है. पुट डाउन द फैक्ट कि मेरे को भरतनाट्यम सीखना है लेडीज को. पुट डाउन द फैक्ट कि मैं वो सब शौक जो बचपन में नहीं पूरे कर सकी वो अब करने हैं मेरे को. डालो अपने ड्रीम लिस्ट पे. पुट डाउन समथिंग लाइक दिस कि आई वांट टू गो अहेड एंड ट्रैवल. नितेश ने कितनी अच्छी बात बताया कि ही वांट्स टू गो टू 100 कंट्रीज, रियली ट्रैवल टू 100 कंट्रीज. यू कैन राइट डाउन अ ड्रीम कि मेरे को सारे 7 अजूबे जो हैं, ऑल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आई वांट टू गो एंड टच एंड फील एंड सी ऑल ऑफ देम. दोस्तों, इस वक्त द होल वर्ल्ड इज बिकमिंग, इज श्रिंकिंग इन साइज. यस, इस वक्त हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पे हम लोग दोबारा ट्रैवलिंग करेंगे. बट आई लव्ड व्हाट के टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि ट्रैवल फॉर फन. क्योंकि बिजनेस में, एमवे बिजनेस में, हम जब आए थे बिजनेस में तो हम लोग क्या करते थे, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और मार्कर लेके निकलते थे एंड वी यूज्ड टू शो प्लान. और हम कहते भी थे कि ये बिजनेस जो है लोगों के लिविंग रूम्स में बिल्ड होता है. वी बिल्ड दिस बिजनेस इन द लिविंग रूम्स ऑफ पीपल, फ्रॉम वन लिविंग रूम टू द नेक्स्ट. एंड एवरी लिविंग रूम में हम लोग जाते थे, वी यूज्ड टू डू अ होम मीटिंग, बोर्ड रखते थे, मार्कर, और मीटिंग के बाद चाय पीते थे उनकी और उनके बिस्किट्स खाते थे हम लोग. वी यूज्ड टू ईट देयर बिस्किट्स एंड वी यूज्ड टू हैव टी विद द पीपल वेयर वी यूज्ड टू गो एंड शो द प्लान. नो मोर. आई डोंट थिंक कि आने वाले टाइम पे देयर इज गोइंग टू बी एनी फिजिकल बोर्ड मीटिंग्स एट ऑल. जो भी प्लान शेयर होगा लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू डिजिटली होगा. ये फैक्ट है. लीडर्स को आप वैसे मिल लेंगे फिजिकली, लेकिन अपॉर्चुनिटी प्लान जो है वो नहीं होंगे पहले पुराने तरीके से. नहीं चाहेंगे हम लोग बोर्ड लेके लोगों के घरों में जा जाके. पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड, लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड. आपको मैं बता रहा हूं, इस बिजनेस में, एमवे बिजनेस में बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज आने वाला है. एंड दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ बिकॉज एमवे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. और पूरी दुनिया में चेंज आएगा तो एमवे में भी आएगा. मेरा ये मानना है कि जब मैं इंडिया आया था तो मेरा विजन था कि एमवे जो है वो एक दिन $1 बिलियन का बिजनेस करेगी इंडिया में. बिकॉज उस वक्त मेरा थिंकिंग लिमिटेड था, बिकॉज यूएस एंड जापान यूज्ड टू बी $1 बिलियन मार्केट्स. बट $1 बिलियन का बिजनेस 7,000 करोड़ का तो वो एमवे 2025 तक कर ही देगी, उनका गोल भी है. बट मेरा अब जो मानना है वो ये है कि इंडिया मार्केट का जो ट्रू पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल ये है कि वट एवर द एमवे इज डूइंग ग्लोबली राइट नाउ, द टर्नओवर एमवे इज डूइंग ग्लोबली राइट नाउ, इट इज अबाउट अ $10 बिलियन टर्नओवर. वो अकेले इंडिया कर सकती है, अकेले आने वाले टाइम में. इतना पोटेंशियल इंडिया में है. क्यों? बिकॉज आज की तारीख में हमारी जो टीम्स हैं पूरे इंडिया में बिल्ड हो रही हैं.
टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग जो है जगह जगह लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, हमें अपना गेम चेंज करना पड़ेगा इस वक्त। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, स्टोरी यही मैं लोगों को बताता हूँ। मैं जब यूएस में था तो एक बार मेरे एक मुलाकात हुई थी एंड्रे अगासी से। एंड्रे अगासी बहुत ज़बरदस्त टेनिस प्लेयर थे यूएस में, और वो अपने कैरियर में पीक में थे, एंड ही वाज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट टेनिस प्लेयर। तो प्रॉब्लम ये थी कि बिकॉज ही वाज सच एन अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर, कि जब वो अपनी पीक पे पहुंचे तो उनके गेम में इंजरीज बहुत हो रही थी, लॉट ऑफ इंजरीज ही वाज हैविंग, बैक प्रॉब्लम्स। तो उनको उनका मूवमेंट एनालाइज करके उनको बताया उनके कोचेस ने कि आपका जो मूवमेंट है और जो स्ट्रोक्स हैं, दे आर एक्चुअली पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर बॉडी, बिकॉज वो बेसिकली गलत तरीके से आप खेल रहे हो इतने सालों से, शुरुआती आपकी गलत हुई है। आपको पता है ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम ही वेंट बैक टू द बेसिक्स, और ये बहुत डिफिकल्ट, इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि नंबर 1 रैंकिंग जिसकी है वो दोबारा से बेसिक्स पे जाके अपना बैकहैंड कैसे मारना है, अपना फुटवर्क कैसे करना है, फिर से सीख रहा है। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, उनकी रैंकिंग स्लिप होती होते 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 केम डाउन टू 141, बिकॉज जो मैच खेलते थे ही यूज्ड टू लूज। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट around 1997-98 again he picked it up and he jumped back to number 6 ranking, उसके बाद number 1 ranking पे दोबारा पहुंचे वो। And then because he changed the game, because he was playing the right way, you know what happened, उनका longevity बढ़ गया, he was able to stay in the top 3 rankings, top 5 rankings for a very long time। वो अपने 40s के एज तक वो खेलते रहे, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल है। मैं आपको एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूं कि आप में से बहुत से लोग आज की तारीख में जो है ना पुराने खिलाड़ी हो गए हैं, एंड यू आर थिंकिंग कि यार वेरी डिफिकल्ट टू टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, यू नो। लुक गाइस, अगर हम लोग, नो मैटर हाउ पेनफुल इट इज, अगर हम लोग अपना फॉर्म और अपना गेम अभी चेंज नहीं करेंगे ना, तो आने वाले टाइम पे क्या होगा कि हमारी रैंकिंग स्लिप हो जाएगी, हमारा बिजनेस नीचे आ सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करना और डिजिटल माइंडसेट रखना दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि वीसीआर और वीसीडी और फोन और टेक्नोलॉजी के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन एक डिजिटल माइंडसेट रखना कि मेरे को बिजनेस में लोगों को कैसे डिजिटल एक्सपीरियंसेस देने हैं, ये बहुत जरूरी है। और हम लोग इस टॉपिक पे आने वाले टाइम पे विल बी डूइंग स्पेशल मीटिंग फॉर BFI BBI क्वालिफायर्स इन मार्च। उसमें हम लोग इन चीज़ों के बारे में बहुत ही गहराई से बात करेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि लर्न टू गेट गुड इन डूइंग मीटिंग्स ऑन जूम, लर्न टू गेट गुड इन कनेक्टिंग विद पीपल ऑन जूम, लर्न टू मेक श्योर कि आप अपने लोगों को नए डिजिटल एक्सपीरियंसेस दे सकें। जैसे फॉर एग्जांपल इस मीटिंग का जो प्रमोशन हुआ था उसमें आप सब लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था, व्हाट्सएप पे, यहाँ वहाँ लोगों ने अपने इंस्टा पेजेस पे, जगह जगह पे देयर वाज अ एडवर्टाइजिंग ब्लिट्स, जिसकी वजह से वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंकरेंट यूजर्स ऑन यूट्यूब राइट नाउ। बट मुझे क्या लगता है कि समहाउ आप लोगों को अपना गेम चेंज करने में एक कदम और रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप लोग आज की तारीख में ये वर्ड बहुत सुन रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स। हमारे आज की जो रियलिटी है वो ये है कि इंडिया में जो यंग बच्चे हैं, मिलेनियल्स, जेनजीज एंड अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली आफ्टर पोस्ट कोविड, उनके सारे के सारा जो बाइंग डिसीजंस हैं और जो उनका जो बाइंग है वो ऑनलाइन हो रहा है। ये तो फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू आर सोशल इन्फ्लुएंसर्स इन योर ओन राइट। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ऑल ऑफ यू ब्रॉन्ज लेवल एंड अबव, यू आर ऑल बोनाफाइड सोशल इन्फ्लुएंसर्स। अगर कोई फिजिकल मीटिंग होती थी पहले, तो याद है किसी भी नए लोगों को लेके आ जाओ, दे यूज्ड टू सी इतनी भीड़ हमें सुन रही है, तो दे यूज्ड टू इमीडिएटली थिंक कि ओ दिस लीडर इज ग्रेट लीडर बिकॉज सो मेनी पीपल आर लिसनिंग, उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो हमसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता था, एंड देन दे यूज्ड टू लिसन टू अस। आज की तारीख में क्या है, तो आप सबके सब लोग जो हैं यू आर ऑलरेडी बोनाफाइड सोशल इन्फ्लुएंसर्स। बट चैलेंज क्या है कि आज की तारीख में जो यंग लोग होते हैं वो आपको डिजिटली पहले ढूंढते हैं और फिजिकली बाद में मिलते हैं। They look you up digitally first and they meet you physically later on. So somehow we all have to find a way how we can showcase हम अपनी सोशल स्टैंडिंग, अपना सोशल इन्फ्लुएंस, हमारी ये भीड़, हमारे डिजिटल इवेंट्स को कैसे हम लोगों तक दिखाएं ताकि वो समझ जाए कि हमारी फैन फॉलोइंग बहुत है।
तो एमवे इसीलिए जो है दे आर ट्राइंग हार्ड टू सी हाउ दे कैन गेट देयर लीडर्स टू स्टार्ट कमिंग एंड पुटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, जो हमें से बहुत से लोगों को चैलेंजिंग लगता है, चैलेंजिंग है भी, मैं वो आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट द पॉइंट इज सूनर और लेटर पीपल विल हैव टू सी अस on digital platforms to know that we have a huge fan following. हमारे टीम का एक प्लैटिनम भी जो होता है ना, उसके भी कम से कम 500-600 लोगों की फैन फॉलोइंग है एक्चुअली फिजिकली देखा जाए तो, बट डिजिटली उसको शोकेस करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो फ्यूचर में नए नए टूल्स आएंगे जहां पर हम लोग इन चीजों को करेंगे, लेकिन हमें अपना गेम चेंज करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। यहां पर जितने भी स्पीकर्स आए सब लोगों ने बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी जो बताई थी केके ने, कि छोटे छोटे चेंजेस, स्मॉल चेंजेस ब्रिंग बिग रिजल्ट्स। इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, कि स्मॉल स्मॉल चेंजेस विल ब्रिंग यू बिग रिजल्ट्स। जैसे अगर मैं एक चट्टान के ऊपर, इफ आई गो ऑन टॉप ऑफ अ हिल एंड इफ आई टेक अ बॉल एंड आई रोल इट डाउन, तो वो बॉल को जब मैं रोल करूंगा नीचे, तो वो बॉल जैसे जैसे स्पीड पकड़ेगी नीचे जाते हुए, कभी एक पत्थर से टकराई, it touched some small stone here, direction change, more speed, suddenly यहाँ पर थोड़ा सा और खिसक गई, change a little bit here, more speed, as it's going down and changing speed and direction, we don't know कि वो ball कहाँ पर जाके land करेगी। This is called the butterfly effect, कि in a complex system, small changes every day bring big results. What are the small changes we are talking about? We're talking about small changes on a daily basis. If you can talk to one person a day and do a meeting, you can go platinum, 1 lakh rupees per month. अगर आप 10 फोन कॉल कर सकते हैं हर रोज, every day, if you can make 10 phone calls, you will set up 1 meeting. That's an average. 10 phone calls, 1 meeting. 1 meeting a day, you can go platinum. You know why? Because 1 meeting a day means at least एक आदमी को आप स्पॉन्सर करेंगे per month. At least 3 से 4 quality customers बनाएंगे हर महीने. Little bit. It's a fact. And if you sponsor one person every month, you know what? You'll have a nice width and you'll have a good amount of customers. इस बिजनेस में अगर आपके पास 20 से 25 कस्टमर्स हैं and you are doing minimum 100, 150, 200, 250 PV with that set of customers because you're becoming good and you're becoming better, you are all set. You don't have to do 10,000 PV all by yourself. बट इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि छोटे छोटे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर रोज लेनी पड़ेगी। वी टॉक अबाउट द ग्रोथ माइंडसेट, विवेक टॉक्ड अबाउट प्री क्वालिफाइंग पीपल, यूजिंग द राइट एक्सपेक्टेशन, पोस्चर। ये सब तभी आ पाएगा व्हेन यू आर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग अ बुक ऑन अ डेली बेसिस। लोगों को लगता है एक बुक से क्या होगा यार, एक ऑडियो सुन लिया क्या हो गया उससे। No, but repeatedly doing it over a period of time, butterfly effect, big changes. If you can just read 2 to 3 pages a day, you can go platinum. If you can just listen to 1 audio talk a day, you can go platinum. Zoom पे Amway इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहा है। You have to understand every product in such a way कि अगर आपको अपने बिल्डिंग में, if you are entering your building and you are in an elevator going up to your floor, और बगल में कोई आदमी मिलता है and the opportunity presents itself, आपके पास एक elevator pitch होना चाहिए जिसमें आप उसको प्यार से, in the elevator itself, it's called an elevator pitch, you can just go ahead and talk to them about 3 key benefits, features or benefits of a product. बहुत ही सहजता से, बहुत ही frankly, in a very simple way. And you know what? When you have elevator pitch जो आपके माइंड में रटी हुई है for different products, your retailing will improve because it's always on your tongue all the time. आपकी जबान पे रहेगी वो चीजें हमेशा। लेकिन होता क्या है ना, बहुत ही बार हम लोगों को लगता है कि सेलिंग कोई बहुत बड़ी चीज है, लोग उसे हवा बना लेते हैं। And many times we are just focusing totally on doing the wrong things and having the wrong expectations. So एक कॉमन वर्किंग पैटर्न एस्टैब्लिश कर लीजिए आप। 10 फोन कॉल्स एवरी डे, 1 मीटिंग एवरी डे 1 मीटिंग, 1 स्पॉन्सरिंग मिनिमम एबीओ आपने बनाया है जिसको प्रॉपरली एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट किया एवरी मंथ। 3 से 4 क्वालिटी कस्टमर्स एवरी मंथ।
You know what you will find by the time you go wide enough कि आपके 4 लेग जो है वो बहुत फास्ट निकल जाएंगे. एंड दोस्तों 4 लेग्स जो है ना इस बिजनेस में खास हैं. 3 पे तो एमवे आपको बीएफआई बीबीआई बोनसेस दे देती है, बट अगर आपके 4 लेग्स एक्टिव हैं और आप 4 लेग से बीएफआई बीबीआई बोनसेस दे रहे हो, देन यू डिजर्व अ स्पेशल प्रेज फ्रॉम मी. मैं आपको सल्यूट करूंगा. अगर आप बीबीआई जाते हो, ब्रॉन्ज जाते हो, तो ब्रॉन्ज पे तो ठीक है, एमवे सेज 3 लेग्स, बट आई से इफ यू गो ब्रॉन्ज विद 4 लेग्स और 5 लेग्स, माय गुडनेस, आई विल नो योर नेम. मैं आपको नाम से बुलाऊंगा उस वक्त. ये बात फैक्ट है. हम जब एमरल्ड गए थे, वी वेंट एमरल्ड विद 4 लेग्स. बट अगर हमें माइंड में ये डाल दिया होता, इफ समबडी हैड टोल्ड अस इन आवर माइंड दैट यू हैव टू गो डायमंड विद 7 लेग्स, जैसे हम लोग डायमंड और फाउंडर डायमंड गए, वी वुड हैव जस्ट ब्रोकन द 7th लेग द सेम ईयर. सो दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है ना कि माइंडसेट शुरू में डालना बहुत जरूरी है. सो हियर व्हेन अ पर्सन इज गोइंग प्लैटिनम, already he knows he has got 3 legs because he has earned bonuses. ठीक है, अगर माइंड में डाल दिया for a 4th leg, he will put a 4th leg also. If the expectation is set from the beginning कि diamond 7 leg से जाना, then he's working on 6th, एक 7th भी add कर लेगा. He will add another 7th one. So all these are small things which we want to talk about, and we're going to be talking about it a great deal in our next big meeting which we will do in March. आई होप कि जो हम लोगों ने अनकॉमन फ्रीडम आज आपको दिखाया वो नए लोगों को पसंद आया, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ यंग पीपल ओवर हियर. लॉट ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड बिकॉज यू डोंट नो वेदर यू शुड चूज एमवे एज अ करियर और नॉट. आई एम टेलिंग यू गाइज, आई एम एन IITian. आई ऑलरेडी टेस्टेड सक्सेस इन द स्टार्टअप वर्ल्ड. मैंने अगर एमवे बिजनेस को एज अ करियर लिया तो मैक्सिमम यंग लोगों को तो यहाँ पर आंख बंद करके एमवे को एज अ करियर ले लेना चाहिए. यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, but you will be limited only by your own imagination. Let me tell you one thing very clearly, and then I'm going to stop. Amway business जो है is going to grow in India despite you. Every year, huge groups of people are going to enjoy foreign trips with their friends without you, with or without you. Every year, Amway is going to pay out crores of rupees in bonuses with or without you. Of course, money is not going to buy you freedom, not going to buy you lifestyle. But it's a combination of money, time, security, friends, सब कुछ मिलके, and that is what's going to create the magic for you. क्या dreams हैं आपके? I don't know what your bucket list is, but you have to seriously think about your dreams, because आने वाले time पे, in the times to come, I can tell you, because of artificial intelligence and the advancements in technology, 47% of jobs are going to go away. there is going to be a lot of businesses जहां पर लोग जो है उनकी जरूरत नहीं होगी. 47% of jobs are going to go away. ये फैक्ट है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब द्वितीय महायुद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद आई थिंक प्रोबेबली फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एक रीसेट हुआ है इकोनॉमी का, जैसे अब हुआ है. और इसके बाद क्या होने वाला है, दैट्स एनीबडीज गेस. वी डोंट नो कि फ्यूचर बिलियनियर्स कहाँ से निकलने वाले हैं. पेरेंट्स डोंट नो कि अपने बच्चों को रियली किस कोर्स पे डालें जहां पर उनका बेस्ट कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं. नोबडी इज रियली नोइंग फॉर श्योर, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि हम श्योर हैं आवर बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू टू परपेचुएट because Amway is in the forefront of technology and Amway has made the preparations. So दोस्तों, I am terribly excited right now. I am getting goosebumps. मैं तो अपने आप को तैयार कर रहा हूं to go ahead and ride this new wave. That's what's going to happen. Next 2 to 5 years is going to be a roller coaster ride. It's going to be a bumpy ride. But be grateful for what you have. That attitude of gratitude is very important. बहुत से बार क्या होता है कि people become very arrogant and boastful and talk about me and me. वो अपने को दिलचस्प दिखाने में इतना एफर्ट डालते हैं कि दिलचस्पी से लोगों को सुनने में ध्यान नहीं देते हैं. We have to be more interested in people rather than try to be interesting ourselves. So don't take the focus away from you. Be interested in people. Try to understand what they are talking about, what they want in life. और मेरे को लगता है कि Amway business is going to become huge in India. And love you all very much. Have a great day. Wish you all the very best. And back.